Hello everyone. Welcome to the marvelous years of academic journey, 50th marvelous years of academic journey to the Institute of Distance and Open Learning, IDOL, University of Mumbai. So, welcome to the course of FYBA Sociology. In this particular video lecture, we'll look into Unit 7, and the topic that would be covered is New Social Media, Social Dimension and Social Networking Sites. So, your subject is titled Foundations of Sociology and paper number 1. And the content creator of this particular video lecture is Dr. Lakshmi, which is me, Lakshmi Periyaswamy, and let us look into more into detail. So this video lecture, before we start our lecture, we need to look into the disclaimer of this lecture. So this video lecture is strictly meant for understanding the concepts and clearing doubts of the distance learners enrolled in the Institute of Distance and Open Learning, which is IDOL, University of Mumbai. It is created solely and purely for academic purpose. The views and opinions expressed by the lecturer and content developer are in his or her individual capacity. The IDOL does not endorse any controversial and sensitive contents. If the images, graphs, maps are taken from online sources, it will be used only for academic purpose and not for any personal use. The most important thing before studying sociology is that we are studying human behaviors, and human behavior is never constant, and the way you see a certain thing is based on your own understanding and your own observations, and what the other person looks, it is from his or her experience. So the most important thing before you take this subject is don't take anything personally. Nothing is intentional being targeted or being blamed or anything. You have to look it a bit more objective way and look it from a multi-dimensional perspective also, to get a more detailed expression or understanding of a particular topic. So whatever I am taking in this lecture is based on my own observation and understanding and reading and traveling and exposure, and you need not often endorse to it, but it can give you help. It would be helpful for you to get a perspective of the topic. So yes, and you might be also having a different viewpoint also of the particular topic. Let us look into it more in detail. So as we saw in the introductory part, we are dealing with social media, the new social media, and its impact, and how sociologists view it, and what are the different types. So all these things are going to be covered in this particular video lecture. Let us begin with an introductory part. So social media is the study of human behavior in groups. Sociology is the study of human behavior in groups, how we live our everyday lives, how we interact with each other, and with the emergence of technology, all these things have changed. So it has not only changed us sociologically, it has changed economically, it has changed politically, and a lot of other dimensions. मतलब हम सोशोलॉजी जो है, समाजशास्त्र जो है, ये ज़्यादातर एक समूह को स्टडी करता है, जो ज़्यादातर ग्रुप है, मतलब इकट्ठा हुए हैं. तो हम इन लोगों को स्टडी करते हैं, और अब ये समूह का बर्ताव जो है वो बदल चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. जितना ज़्यादा हम आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ ही हम उसमें बदलाव आ गया है. तो ये बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में हम विस्तार से देखेंगे.
तो कुछ डिक्शनरियाँ हैं जिन्होंने शब्दकोश ने सोशल मीडिया को डिस्क्राइब किया है। तो उसमें से एक है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। सो व्हाट इज़ कैम्ब्रिज डिक्शनरी कॉल्स एज सोशल मीडिया? So according to Cambridge Dictionary, the websites and computer programs that allow people to communicate and share information on internet using a mobile phone or a computer is called as social media. There is one more renowned dictionary of Merriam-Webster, which defines social media as a form of electronic communication, such as websites, which is used for social networking and microblogging, through which users create online communities to share information, ideas, and personal messages and other content, such as videos. Now the social media is also an important platform for advocacy, and it is a powerful tool. People gather and talk about several social issues through social media. We have the anti-corruption movement, we have the Anna Hazare movement, Obama, who used social media a lot to spread his campaign and to engage young voters into the picture. A lot of several political parties have used social media a lot, including our prime minister who uses Twitter, or the ex foreign minister Sushma Swaraj, who used social media and who used to help a lot of people. So a lot of things has happened through social media. Social media also brings people with the similar ideas and similar goal together. Like you must have used communities, you must have used forums where you ask your doubts and you raise your questions. And the benefit of social media is you can have certain anonymity, you can have certain identity, avatar, and all those things. So a lot of say things can happen through social media. So I'm sorry, Sushma Swaraj Madam was the Minister for External Affairs. I said it wrongly as Foreign Minister, so I just wanted to recorrect that. And social media can be a key for dissemination of information, which is important ideas could be spread through social media. So this can happen because of social media only. A lot of people are coming together, and it's now it is like people ask each other's address. So it's many a times not home address, many a times people are asking the other person's name, URL, or say tell me a Facebook address. So things has come from a very mass culture kind of a thing. मतलब बताना यही था कि सोशल मीडिया जो है ये सिर्फ आज इंसान नहीं यूज़ कर रहा है, बट कि बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एडल्ट्स नहीं, लेकिन बच्चों को भी इसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बचपन से ही होना शुरू हो चुका है. जैसे पेरेंट्स बच्चों का भी सोशल अकाउंट, मीडिया अकाउंट बनाते हैं, उनका फ़ोटो अपलोड करते हैं, उनके अलग अलग पिक्चर्स अपलोड करते हैं, उनके स्कूल में क्या फंक्शन हुआ उसके बारे में अपलोड करते हैं, उनका बर्थडे अपलोड कर रहे हैं. तो बच्चे बचपन से ही सोशल मीडिया यूज़ करना सीख रहे हैं. और अगर जैसे जैसे वो सोशल मीडिया जो है उसके बारे में हम हर प्लेटफॉर्म में बात करते हैं, तो उससे उसका प्रभाव जो है वो ज़्यादातर बढ़ता ही जाता है और बढ़ ही रहा है. तो सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग टूल बन चुका है. मतलब किसी को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है, ये इफ़ेक्ट करे बिना नहीं रहता है. तो आज जो है सोशल मीडिया में जो संवाद हो रहा है, जिसके बारे में हम बात करें, वो मैसेज जो है वो बहुत लाउड है. मतलब वो सभी के पास पहुंचता है और हर चीज़ जो है वो मीडिया में दिखाई देती है, सोशल मीडिया में. लेकिन हर चीज़ जो है वो सही नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है.
बहुत सारी चीज़ें जो है मॉर्फिंग होती है, मतलब फ़ोटो की मॉर्फिंग होती है, वीडियो की मॉर्फिंग, मतलब किसी और का चित्र किसी और के शरीर में लगाया जाता है और उसे वीडियो बना के गलत अफवाहें भी फैलती हैं। यहाँ तक कि पैंडमिक के टाइम में आपको पता है गवर्नमेंट को स्पेशली एक्ट लेके आनी पड़ी, लॉस आईटी एक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया कि अगर आप कोविड के बारे में कुछ गलत न्यूज़ फैलाते हैं तो आपको फ़ाइन होगी, पेनल्टी होगी, आपको जेल होगी। तो जो फेक न्यूज़ का पूरा मार्केट है ये बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो कहने का मतलब यही है कि सोशल मीडिया लोग इतना क्यों यूज़ करते हैं। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये इजी है, ये कन्वीनियंट है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये एक बटन पे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया जो है ये अलग अलग तरीके से भी हमें इन्फ्लुएंस करती है। जैसे सोशल मीडिया हमारे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ही उस तरीके से बनाया गया जिससे हमारा पूरी ध्यान एकत्रित हो सके और हमें ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं करना पड़े। जैसे एक बटन में आपको पूरी दुनिया दिख जाए, दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में, या दुनिया में कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं पे कुछ अच्छा चीज़ हुआ, जो भी है वो आपको 2-10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। और ये सब चीज़ जो है आपके दिमाग पे भी वो प्रभाव करेगा, आपके जो बर्ताव है उससे भी। और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ आपको नहीं होगा लेकिन आपके बिहेवियर पे भी होगा। तो जिस तरीके से आप मोबाइल में हर चीज़ आपको तुरंत मिलती है, उससे आपकी आदत बन जाती है, उसी से आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप उसी तरह के प्रभाव ढूंढते हैं या उसी तरह के आप प्रैक्टिसेस ढूंढते हैं। मतलब हर चीज़ आपको तुरंत चाहिए, हर चीज़ के लिए आपके पास अभी पेशेंस नहीं है। हमारे पास अभी ये सिर्फ आप नहीं, मैं भी, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, हमें कराया जा रहा है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो स्पीड है उसके हिसाब से हम भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की स्पीड बदल रहे हैं। तो जिसे कहते हैं कि जो एज है, जिसे हम कह सकते हैं कि कितने साल, जो स्पीड है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट में जी रहे हैं। आज थोड़ा सा अगर इंटरनेट नहीं शुरू हुआ तब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बाहर जाते हैं, प्रत्यक्ष में बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं। जो कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक में आज भी 15 साल से हैं दोस्त बन के, लेकिन मिले नहीं हैं। तो ये भी हम सोशल मीडिया का अलग अलग डायमेंशंस है। तो सोशल मीडिया जो है आपको इकोनॉमिकली भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे हमने शुरुआत पे देखा था, पॉलिटिकली भी चेंज कर सकती है, वोट बैंक एकत्रित कर सकती है, कुछ इश्यूज मुद्दे पे चर्चा हो सकती है, स्प्रेड कर सकती है, दंगा हो रहा है उसको भी दिखा सकती है, और लोग खुद से मोबाइल लेके खुद से दंगा को रिकॉर्ड कर रहे हो और खुद से वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सोशल मीडिया जो है आज सिर्फ एक ही तरीके से जा रहा है ऐसे नहीं है, लेकिन लोग भी अपना ओपिनियन बता रहे हैं। तो ये दो तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है और लोग बता रहे हैं, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो जैसे एक पत्रकार अगर न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे एक पूरी टीम है, एडिटर है, कैमरामैन है, वहाँ पे स्क्रूटिनी होती है, कुछ चेकिंग होती है। सोशल मीडिया में इतना वीडियो अपलोड हो रहा है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी भी एक 10 वीडियो तो एटलीस्ट अपलोड होता होगा, हज़ारों में, लाखों में अपलोड होता होगा। तो ये लाखों वीडियोस को किस तरीके से हम कंट्रोल करें, किस तरीके से हम मॉनिटर करें, ये एक बड़ा सा मुद्दा है। और कितने लोग, कहाँ से जो ओनर्स हैं वो मॉनिटर करें, क्योंकि करोड़ों में, बिलियंस में संख्या में लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा सा एक प्रॉब्लम है हमारे सामने आज। सोशल मीडिया जो है हमें बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे हमने देखा, हम अलग अलग मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे आप फेसबुक में एक वीडियो होगा, उसके नीचे कमेंट होगा, उसके नीचे आप झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता है, लोग इतने झगड़ा करने के लिए इनके पास टाइम कहाँ से होता है। आप यूट्यूब देख लीजिए, लोग सिंपल सी चीज़ों पे झगड़ा शुरू होता है, ये 200 कमेंट, 300 कमेंट, उसके बाद एक दूसरे को दे स्टार्ट कर्सिंग ऑल्सो।
तो और वो भी बहुत अलग तरीके से, मतलब एक दूसरे को जेंडर पे, एक दूसरे को अपने देश पे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये इनके अंदर आ क्यों रहा है, ये गुस्सा किस तरीके से आता है, तो ये सब हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। स्वाति चतुर्वेदी करके ये मैडम है, जिन्होंने, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सोशल मीडिया किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है इसके बारे में बताया। तो वो कहती हैं कि बहुत बार जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, इन्होंने जो है कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी रखी है, और ट्रेनिंग से उनको पैसे भी दिए जाते हैं। जैसे आप एक किसी को टारगेट करना है, आप 40 से ट्वीट करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे बुरी तरीके से, तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, जैसे 7 रुपये, 10 रुपये ऐसे मिलेंगे। तो आपको ये ट्वीट करना है और आपको पैसे मिल रहे हैं। तो हर चीज़ जो है आपको एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपको क्रिटिकली देखना है। कोई अगर ट्वीट कर रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है, या वो क्यों कर रहा है, ये सच भी कह रहा है क्या, सच है तो इसमें कितना परसेंटेज सच है, वो किस तरीके से बता रहा है, तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। तो वो मैडम ने बताया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जब लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं या हार्म करने को ट्राई कर रहे हैं, तो इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि इनकी इंग्लिश जो है टूटी फूटी होती है, इन द सेंस कि हिंग्लिश बात कर रहे हैं, वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बात कर रहे हैं, उनको इंग्लिश क्लियर नहीं है, ग्रामर इनका ठीक नहीं है, और वो ज़्यादातर महिलाओं को टारगेट करते हैं। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स वो बता रही हैं कि किस तरीके से हैं। और वो जर्नलिस्ट जब भी वो कुछ मुद्दे पे लिख रहे हैं, स्पेशली विमेन जब भी कुछ लिख रहे हैं, तो उनको बहुत बुरी तरीके से, यानी कि सुसाइडल, रेप, इस तरीके के गालियाँ दी जाती हैं। तो ये बुक बहुत अच्छा है, आप भी पढ़ सकते हैं और आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके लोग एक दूसरे को थ्रेट की तरह से भी देख रहे हैं। आप ये भी आपने सुना होगा कि कुछ फेसबुक पे कुछ बच्चों ने, लड़कियों ने कमेंट लिखा कुछ पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में, और वो फिर उसके बाद जो है कुछ पॉलिटिकल ग्रुप ने जाके उन लड़कियों को टारगेट किया, मारा। यहाँ तक कि लिबर्टी, द राइट टू लिबर्टी, या जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम कहते हैं कि सबको सही अधिकार है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, ये भी टारगेट किया जाता है। तो सोशल मीडिया हमेशा अच्छा काम करती है, करके नहीं है, लेकिन लोग स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया आपके बिहेवियरल तौर पे काम करती है, आपके बिहेवियरल साइकोलॉजी को यूज़ करती है, और आपके इमोशंस पे भी बहुत ट्रिगर करती है, और लोग जो हैं ये समझते नहीं हैं और वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। और सोशल मीडिया जो है बहुत सारे टूल्स यूज़ करती है जिससे आपका अटेंशन जो है ग्रैब करके रखे। मतलब जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी डिजिटल डिवाइस है, जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम अगर यूज़ होता है, उतना ज़्यादा सोशल मीडिया वालों को जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा वो आपको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक इकोनॉमिस्ट है जो कहते हैं कि जब भी वो कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो वो आपको फ्री में नहीं दे रहे, लेकिन आप फ्री में बन रहे हो, मतलब यू आर द प्रोडक्ट हु इज़ बीइंग सोल्ड, आप वस्तु बन रहे हैं तभी। तो आपको जब भी कोई फ्री में दे रहा है, तो वो आपका डेटा ले रहा है, आपके पूरे से इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके एवरीथिंग, वो आपका हर चीज़ वो जो है आपकी तरफ से वो आपका लेके कल आपको ही वो बेचेगा, या आपको ही वो प्रोडक्ट के तौर पे बेचेंगे, वो आपको एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बेचेंगे, अलग अलग तरीके से। तो उससे क्या होगा कि आप जो है अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें जो है अब्सॉर्ब करते जाएंगे। और कुछ वीडियोस, जैसे बहुत बार ऐसे होता है, कुछ वीडियोस आप वापस देखते हैं, या आप एक बार आपने सर्च बॉक्स में डाला, क्योंकि वो आपका पूरा डेटा सेव्ड है, तो वो पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड वीडियो आपको देंगे नेक्स्ट टाइम। जैसे यूट्यूब में होता है, आप कुछ सर्च करते तो वो सिमिलर चीज़ आपको रिपीट होती है, क्योंकि आपने ईमेल आईडी, आपका ऑलरेडी जीमेल एक्टिव है, तो आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो आपको सिमिलर चीज़ें देखेंगे, और वो देखते देखते आप एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जब आपको लगेगा कि दुनिया इसी तरह से ऑपरेट होता है, यही सही है।
तो आपके माइंड में भी कैप्चर करने की कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा रखती है। तो सोशल मीडिया का ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल है। चलो हम देखते हैं कि अलग तो नॉम चॉम्स्की करके एक मीडिया क्रिटिक है, हम जाने माने। तो वो कहते हैं कि कंसेंट जो है, हम किस तरीके से क्या चीज़ देखना चाहिए, या कंसेंट मतलब मुझे अच्छा लगता है नहीं लगता है, ये अभी मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब आप पे थोपा जाता है और आप उस तरीके से ही सोचते हैं। जिसे आपको एक चश्मा की तरह दिखाया जाता है, यही चश्मा है, यही दुनिया है, तो आप उसी तरीके से देखते हैं। आज जो है ये टेक्नोलॉजी, ये पावर क्रिएट हो चुकी है, और ये पावर जो है ये दुनिया भर में बहुत इन्फ्लुएंस करती है। सिर्फ आपको नहीं, मुझे नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को एक मूवमेंट की तरह ये प्रभाव करती है। तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो है अपने अपने विचार बताते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बताते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजी में, जो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया ने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मदद की है, या टेक्नोलॉजी बदलने में या आगे लेके जाने में बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। जैसे हम कहीं पे फ्लड्स में अटक जाते हैं, ट्रैफिक कहीं हो रही है, तो ट्विटर के थ्रू आप इमिडिएटली बताते हैं कि हम यहाँ यहाँ अटक गए, घरों में अटक गए थे फ्लड्स के टाइम में, कहीं टेररिज्म के टाइम में। बहुत सारे इश्यूज जो हैं तभी एक दूसरे को हमें रूटीन चाहिए, हमें ये चाहिए करके लोग बताते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी एक दूसरे को बहुत हेल्प किया है उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू। कुछ मैनिफेस्ट मतलब कुछ दिखाए दिए फंक्शंस होते हैं, कुछ इंटेंडेड होते हैं, मतलब कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। और सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से देखने की बहुत ज़रूरत है, रादर दैन एक चीज़ एक नज़रिए से देख के आप उसी पे यही अंतिम सत्य है करके सोचना। हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया हैं। जैसे ट्विटर है, ये जो 40 लेटर्स का है और 40 शब्दों का है, बहुत छोटा सा ट्विटर है, लेकिन ये काम जो है एक एटम बॉम्ब की तरह आज कर रही है कि कुछ भी होता है अपडेट ट्विटर में आता है। बड़े बड़े जैसे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने ट्विटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेसबुक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और फेसबुक में वीडियो कंटेंट भी बता सकते हैं, और कहीं पे कुछ हो रहा है या आपकी क्रिएटिविटी है, आप एक दूसरे को मिल भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फेसबुक के एडवांटेजेस। और टेलीग्राम जो है जहाँ पे आपको आपका नंबर भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, चैनल होता है जहाँ पे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं। जैसे एक केरला में शायद से ये रेलवे स्टेशन में एक कूली जो है, ये बेसिकली कूली का काम कर रहे थे। उन्होंने फ्री वाईफाई जो मिल रही थी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में, उसके थ्रू उन्होंने एक गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स क्लियर कर दे, बेसिक गवर्नमेंट के एग्ज़ाम। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्री वाईफाई का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। व्हाट्सएप जो है ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन मोड है। लोग ग्रुप्स बनाते हैं, इससे दिन रात लोग चैट करते हैं। बहुत सारे अंकल आंटियाँ होती है जो सुबह उठकर पहला काम होता है कि वो व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, दिवाली को विश करते हैं, सब बर्थडे को विश करते हैं। तो व्हाट्सएप जो है वो एक्चुअली आज की डेट पे पोस्ट पैंडमिक ये प्रोफेशनल यूज़ भी हो रहा है और पर्सनल यूज़ भी हो रहा है। तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल का जो ये वॉल था वो पूरा ब्लर हो चुका है, मतलब वो पूरा आज की डेट में डिवाइड हो चुका है। तो ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो है, जो एक जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें हम वीडियो शेयर करते हैं और फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं, ये इमेज बेसिकली प्लेटफॉर्म है।
तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स का इसमें एक प्रोफाइल होता है। लोगों को कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी बेच सकते हैं। एक प्रोफेशन बन चुका है आज के डेट में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर करके, जहाँ पे आप प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, आप खुद भी बेच सकते हैं कुछ चीज़ों को, आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो ये सब है। स्नैपचैट अगेन कुछ फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं। ये सब ब्लॉग्स, जहाँ पे आपको कुछ विचारें आ रहे हैं, आपको कुछ लिखना है, इसके लिए भी आप ब्लॉग्स यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब जो है, जो जिसमें हम बहुत सारे कंटेंट बना सकते हैं और कंटेंट शेयर कर सकते हैं। सिटीज़न जर्नलिस्ट बनते हैं, जैसे बहुत सारे गाँवों में जहाँ पे न्यूज़ चैनल नहीं आ रहे, गांव की लड़कियों ने वीडियो बना के डाला है कि हमारे स्कूल किस तरीके से, हमारा क्या कह सकते हैं, हमारे गांव में स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इस वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। तो ये वीडियो देख के लोगों ने हेल्प किया, लोगों ने न्यूज़ कवर किया है, मीडिया ने देखा है, जो पॉपुलर ट्रेडिशनल मीडिया है जिसे हम जर्नलिज्म कहते हैं, ये मीडिया ने देख के उसके बारे में उन्होंने चर्चा की, और उसके बारे में चर्चा होने के बाद किसी के ध्यान पे आता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और या एनजीओ, और लोगों ने मदद की एक दूसरे को। तो बहुत सारे अच्छी चीज़ भी हो रहे हैं। लिंक्डइन करके ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बेसिकली जो है महिलाएं और पुरुष जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि सीईओ ऑफ ए कंपनी यू कैन आल्सो मीट ओवर हियर, एंड आप अपना जॉब प्रोफाइल बना सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और आप जो भी है ट्रेनिंग के बारे में, रिसर्च के बारे में, या कौन से मार्केट में क्या चल रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं। बेसिकली ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, जहाँ पे आप आपके काम के हिसाब से आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं और अपना काम बता भी सकते हैं, और आगे भी ये कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। सोशल डायमेंशन ऑफ सोशल मीडिया इसकी, जैसे मैंने बताया कि आप अभी कंज्यूमर मैनेजर भी बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हो, आप ब्रांड्स को यूज़ भी कर सकते हो। तो बहुत सारे चीज़ हैं। और सोशल मीडिया से आज एम्पावरमेंट इन द सेंस कि ये एक पेन है जो सबके हाथ में है। आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास अलाउड है, आप टाइप कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं एक पर्टिकुलर मुद्दे पे, और घर बैठे बैठे से दे सकते हैं। आपको कहीं जाके कंप्लेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो फेसबुक जो है ये 96% ऑफ सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं यूज़ करते हैं, अपने दोस्तों को मिलते हैं, कुछ ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, कभी भी इन पर्सन मीट होना है तो उसके बारे में भी लिखते हैं। तो सोशल मीडिया जो है ये हमारे लिए क्यों लोग इतना यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये एक नेटवर्किंग साइट है। हम बेसिकली हम समूह एक ग्रुप की तरह फॉर्मुलेट हुआ है, तो हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने का जो ये डोपामाइन आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक केमिकल जो हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है, उसके थ्रू सोशल मीडिया जो है ये बहुत ऑपरेट होती है। इट यूजेस दस, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। और सोशल मीडिया जो है ये आपको क्या पसंद है उस बेसिस में आपको देती है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी सेल्फ क्या है, आप एक पूरा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे आप कौन है ये बता सकते हो दुनिया को। और सेलिब्रिटी बनने के लिए कोई भी बन सकता है, आपको वायरल बनना है और आपको सेलिब्रिटी बन सकता है। पहले किसे एक जो टीवी में आता था वही सेलिब्रिटी, आज एक यूट्यूबर होगा, 10 वीडियो डाल दिए से उसमें से 1-2 वीडियो मिलियन हिट हो गया तो यू आर फेमस, सो यू बिकम ए सेलिब्रिटी। बट इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो एडिटिंग होती है, वीडियो कंटेंट बनाना पड़ता है, वापस देखना पड़ता है, इसमें कुछ इशू वाले नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दिखता है वैसे नहीं होता है। बट स्टिल ट्रेडिशनली एक जॉब लेने के लिए लोग 20 साल 30 साल लगाएंगे। आज एक बच्चा भी साइकिल कैसे चलाना है वो वीडियो डालता है, एक्सरसाइज कैसे करना है वो वीडियो डालता है,
एक बच्चा जो है 5 साल का बच्चा भी डांस करके खुद का वीडियो अपलोड करता है, या कंप्यूटर को कैसे रिपेयर करना है इसके बारे में, या लैंग्वेज कैसे सीखना है इसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने एक बच्चों का वीडियो देखा था, वो है 5 साल की बहन, 2 बहन है, वो साइकिल कैसे चलाना है इसके बारे में। कुत्ता बिल्ली का वीडियो जो है ये भी है, बिलियन लाइक हिट कर रहा है, बिल्लियों का वीडियो बहुत पॉपुलर है। तो हम कुछ भी डाल रहे हैं, बेसिकली एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बन चुका है आज की डेट में। लेकिन ये एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट ही नहीं, लेकिन इसके अलग अलग पहलू भी हैं। ओके, तो सोशल मीडिया जो है ये एक इंटरेक्टिव मीडिया है जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और लोग जो है अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जैसे हमने बताया। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ये जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजी में, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया अपनी एक परछाई की तरह, एक आईना की तरह बन चुका है, जहाँ पे लोग फीडबैक देते हैं, लोग अपना बारे में बताते। स्पेशली टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, क्योंकि टीनेजर्स जो हैं अभी भी अपना आइडियाज़ फॉर्मुलेट कर रहे हैं, दुनिया कैसे हैं ये समझ रहे हैं। तो उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी इतना मेच्योर लेवल पे, इन द सेंस ब्रेन कम्प्लीटली इवॉल्व नहीं हुआ। तो कुछ भी जैसे अल्कोहल होता है, कुछ भी जो अटेंशन ग्रैबिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो एज ग्रुप में ब्रेन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इवॉल्व है, उससे ज़्यादा नहीं ग्रोथ हुआ है। तो इससे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, उन्होंने, बहुत सारे नहीं, कुछ टीनेजर्स जो हैं कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म से, ब्लू व्हेल जैसे प्लेटफॉर्म से देख के दे आर कमिटेड सुसाइड, यहाँ तक कि लाइव सुसाइड भी अपलोडेड है। तो सोशल मीडिया एक काइंड ऑफ अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती है। सोशल मीडिया से जो है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होते हैं, जैसे रियलिटी शोज़ में पूछते हैं इंडिया आप वोटिंग कीजिए, तो कुछ हद तक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है मीडिया, जिसके पास इंग्लिश आती नहीं है वो जो है ये सब चीज़ें एक्सेस, आई एम सॉरी, एक मिनट आप ज़रा ब्रेक ले लीजिए। अभी तक जितना बताया गया उसके बारे में आप ज़रा देखिए। सो ये था लास्ट स्लाइड। ये बताने से पहले मुझे ये बताना था कि देयर इज़ ए गुड मूवी कॉल्ड सोशल डिलेमा, ये नेटफ्लिक्स पे है। अगर आपको कुछ आप ढूंढेंगे थोड़ा, तो आपको कुछ और साइट में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो कुछ और साइट्स में भी आपको मिल सकती है। आई वुड रिकमेंड दिस मूवी कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि वो बता रही है, पिक्टोरली बता रही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, और ये लोगों को जो इंटेंशन था, मतलब जो फाउंडर्स को बनाने, जो ये कंपनीज जिन्होंने भी बनाई है, जैसे अलग अलग कंपनीज जिन्होंने भी बनाई है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो इसके ही एम्प्लॉयज़ जो है, ये कंपनी में काम करने वाले लोगों ने ही ये मूवीज़ के बारे में बताया कि किस तरीके से ये पूरा प्रॉब्लमेटिक है, किस तरीके से ये आपका ब्रेन को जो है कैप्चर करता है, और किस तरीके से ये जो है ये आपको प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं और आपको भी एक प्रोडक्ट बना रही है।
और उन्होंने किस तरीके से बिहेवियरल साइकोलॉजी को यूज़ किया है और कितना नुकसान हो रहा है। और हम कुछ सालों में ज़्यादा कंज्यूम करते रहेंगे तो हम एक रोबोट की तरह ही ऑपरेट करेंगे और आपका पूरा डेटा जो है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आपको क्या पसंद है, ये सब आपका प्रोग्राम्ड रहेगा। तो आपका खुद का कुछ नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मूवी है जो आप देख सकते हो। ये मूवी से ज़्यादा ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इंटरव्यूज़ हैं लोगों का, जिसमें जो फाउंडर्स हैं और किस तरीके से लोग जो है घर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज किस तरीके से आ रहा है, सुसाइड तक कैसे पहुंच रहे हैं और किस तरीके से लोग डिस्टर्ब होते हैं और किस तरीके से कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट बेचती है। ये आप अगर देखते हैं तो आपकी जो सोच विचार जो है ये पूरी तरह से खुल जाएगी। तो और आपको भी बहुत अलग अलग पहलुएं समझ में आएगी और सिर्फ आप नहीं बचेंगे लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्तों को भी आप ये मूवी रेकमेंड करेंगे क्योंकि ये इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। तो ये आप देखेंगे, आप सोचने भी लगेंगे, आप इसके बारे में विचार भी करेंगे। आई रिपीट, द टाइटल इज सोशल डिलेमा, SOCIAL स्पेस DILEMMA। तो आप ये जो है प्लीज़ देखेंगे तो आपको ये टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगी। लेट अस गो टू द क्वेश्चंस। आपके एग्ज़ाम में किस किस तरीके के आ सकते हैं। पहला होगा कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया। हमने ये शुरुआत में देखा कि सोशल मीडिया इज़ एन टूल विच इज़ डिक्शनरी में हमने देखा इट इज़ ए साइट वेयर पीपल कम टुगेदर, दे एक्सचेंज फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ and it is used through a computer or in networking where in person is not there but कुछ गैजेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है। अलग अलग डायमेंशन है सोशल मीडिया का, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। वो एडवोकेसी टूल के लिए यूज़ किया जा सकता है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है, जैसे ट्विटर है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसे लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, बहुत सारे हैं हमारे पास। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, आप पे किस तरीके से प्रभाव हो सकता है, ये आप खुद का भी आंसर्स इस पर लिख सकते हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। हाउ हैज़ डिजिटल मीडिया चेंज द सोशल इंटरेक्शन। जैसे मैंने बताया कि लोग अब दिन रात मोबाइल पे स्पेंड करते हैं rather than गोइंग आउटसाइड, खेलना, बैडमिंटन खेलना, से क्रिकेट खेलना। बहुत सारा टाइम जो है, हम स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का, एडल्ट्स का, सबका इसमें चला जाता है। तो ये सब कुछ चेंजेस लाए हुए हैं समाज में और ये और ज़्यादा ही बढ़ेगा क्योंकि हम आज की डेट में पैंडेमिक में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुका है। हम अलग अलग से कोडिंग बच्चों को बचपन से ही सिखा रहे हैं। तो जो कि जिससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है ये थोड़ा ज़्यादा ही कंप्यूटर बेस्ड ही होगी और इसका सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं देखना है बट हमने इसका नुकसान भी देखना है। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन एक वाइज टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ करना है। मतलब उसे बैलेंस पे रखना है। कुछ भी चीज़ ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप एक दिन में 2 घंटा अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 घंटा खेलना भी ज़रूरी है। तो पूरी तरीके से आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, जैसे आपका आईसाइट का प्रॉब्लम होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम होगा, आपका बैठने का पोस्चर बदलेगा, आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी वो थोड़ा सा मतलब आपको हर चीज़ तुरंत चाहिए, एक क्लिकिंग एंड बटन स्पीड पे चाहिए। आप हर चीज़ जो है आपको अटेंशन ग्रैबिंग होगी, पेशेंस कम हो जाएगा, लॉट ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। तो द पॉइंट इज़ कि हर चीज़ को हमें बैलेंस के तौर पे देखना है। सो विद दिस आई थिंक आई रैप अप दिस पर्टिकुलर
video lecture. I hope that you have understood the concepts, and it would be fruitful for you to understand the whole idea behind social media. And after this lecture, you will be a careful and a uh, wise person who is using social media, and you will also be say a sensible user who is not creating something called as a digital e-waste. मतलब आपको इंटरनेट जो है फ्री में मिल गई है, इसीलिए आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तभी भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। इन द सेंस कि जिस तरीके से हम घर में कुछ चीज़ों को वेस्ट करते हैं, जैसे पेपर्स हो, पेन हो, फूड हो, या जो है उसी तरह से हम डिजिटल ई वेस्ट में नहीं पहुँचेंगे। I hope after listening to this lecture you reach into that conclusion. Okay, we'll meet in the next class, and thank you.